کہ اللہ تعالیٰ دین کی محنت اور دین کی سمجھ سب کو نہیں دیتے. دین کی محنت اور دین کی سمجھ سب کو نہیں دیتے. اللہ جسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسی کو دین کی سمجھ دیتے، اسی سے دین کی محنت لیتے اور اسی کی جان اور مال کو قبول کرتے ہیں. اللہ نے جو جوڑا ہے یہ کوئی معمولی کام کے لیے نہیں جوڑا، کوئی معمولی محنت کے لیے نہیں جوڑا ہے. یہ اتنی اونچی کام ہے، اتنی اونچی کام ہے کہ آج ہمیں اس کی احساس تک نہیں ہو رہا ہے. احساس ہوگا، پتہ چلے گا. مرنے کے بعد جو حقیقت والی آنکھ کھلے گی قبر سے، وہاں پتہ چلے گا کہ اس کام کی اہمیت کیا تھا اور اس کام کی محنت پہ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، وہ اس وقت پتہ چلے گا. آج اگر اس کام کی نفع کو اللہ کھول دے، انسان اس کام کی نفع کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سینہ پھٹ جائے گا. اب دیکھیں نا، کسی کو اچانک صدمہ لگتا ہے، اچانک صدمہ لگا تو فوراً اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے. لوگ کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، یہ تو اچھا خاصا تھا. کہتا ہے کہ اس کو اچانک صدمہ لگا ہے، ہارٹ اٹیک کر گیا، برداشت نہیں کر پایا، وہ سہ نہیں پایا. کسی کو ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی کہ خوشی کے مارے بھی مر جاتا ہے آدمی. اس طرح سے اللہ اس کام کی نفع کو اللہ اگر کھول دے دنیا میں، آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. یہ اتنی بڑی کام میں اللہ نے ہم سب کو جوڑا ہے. ہم جتنی شکر ادا کریں گے اللہ کا، ہم اتنا ہی کم ہے. اس لیے میرے بزرگوں، جو اللہ نے نعمت دیا ہے اس کی شکر ادا کریں گے، اللہ نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور نعمت میں ناقدری کیا تو اللہ چھین لیں گے. اللہ دین سب کو نہیں دیتے، دین کی محنت سب کو نہیں دیتے. دنیا اللہ سب کو دیتے ہیں. نمازی کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، بے نمازی کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، کافر مشرک کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، شرابی کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، جواری کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، جانی کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا ہے کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ ناستک کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے کہ 2 روٹی 2 بوٹی، اور اس کو بھی اللہ بیوی بچہ دیتا، گھر مکان زمین جائیداد اللہ دیتا ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا سب کو دیتا ہے، دین سب کو نہیں دیتا. اللہ دین سب کو نہیں دیتا. اللہ جسے محبت کرتے ہیں اسے دین دیتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے جو ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہے اور دین کی سمجھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے. لیکن اگر ہم ناقدری کریں گے کیا بنے گا بتائیے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ مکے میں آئے تو ان سے ملنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اکرمہ، یہ سب جمع ہوا. کیونکہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ وہ قوم کی سردار تھے، قبیلے دوست کے سردار تھے. تو یہ سردار ان سے ملنے کے لیے پہنچا تو پہنچ کر کے کہا کہ دیکھو تم قوم کی سردار ہو اور تمہیں ہم آئے ہیں آگاہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا دعویٰ کیا ہے. دیکھو ان کی بات جو سنتا ہے ان کا ہو جاتا. ان کی باتوں میں جادو ہے، تم ان سے دوری بنا کے رکھنا، ان کی باتوں کو نہیں سننا. اگر ان کی باتوں کو سنو گے تو تمہارے قوم میں پھوٹ پڑ جائے گی، میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے گی، باپ بیٹے میں پھوٹ پڑ جائے گی اور تمہاری قوم کی سرداری چھوٹ جائے گی. اس لیے ان کی باتوں میں مت آنا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ کیا کیا، انہوں نے روئی خریدا، روئی کاٹن، اور اپنے کانوں میں ڈال لیے کہ حضور کی بات کو نہیں سننا ہے. ایک دن جب گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ جب دیکھا تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ کی دل نے کہا، کسی انسان نے نہیں کہا، دل نے کہا
तू एक समझदार कौम की सरदार है, तो तू कान में रुई ठूस के घूम रहा है। अरे बात सुन, अगर अच्छा लगे तो कबूल करना, वरना रद्द करना। तो उन्होंने वहां पे कान से रुई को निकाला और रुई को फेंका और हुजूर की खिदमत में पहुंच के कहने लगे कि हुजूर आप किस चीज़ की दावत देते हैं, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की मानो, मुझे अपना नबी मानो, सच बोलो, अमानतदारी करो, झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, औरतों पे जुल्म मत करो, जिना मत करो, चोरी मत करो। तो तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह कहने लगे कि हुजूर आपके बारे में मक्का के लोग तो ये कहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो नहीं, हम ये दावत देते हैं। तो तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह कहने लगे कि आप तो बड़ी अच्छी दावत देते हैं, आप तो बड़ी अच्छी दावत देते हैं, ये तो अच्छी बात है। उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा, उसी वक्त मेरे बुजुर्गों, उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने कबीला वापस गए और मेहनत किया। जो मेहनत उनका था वो मेहनत आज मेरा है। फर्क देखिए हम कहाँ हैं। अल्लाह कल क़यामत के मैदान में अल्लाह हमसे भी पूछेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह आते तो अपने हाथ को उल्टा करके आते। लोग पूछते क्यों आप उल्टा हाथ किए हुए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहते कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला जिम्मेदारों को, जिसको अल्लाह ताला हुकूमत दिया है, अल्लाह ताला सबको उल्टा हाथ बांध के लाया जाएगा और जिसकी सही अमल होगा उसको खोल दिया जाएगा और जिसको अमल नहीं सही होगा अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे उठा के जहन्नम में उल्टा हाथ बांधे हुए फेंक। सच्ची दिल के ऊपर हाथ रख के देखिए, आज हम सब भी जिम्मेदार अल्लाह ने बनाया है। अपने इलाके के एतबार से, अपनी मस्जिद के एतबार से, अपनी घर के एतबार से अल्लाह ने हम सबको जिम्मेदार बनाया है। और कल अल्लाह ताला हम सब से पूछेगा कि बताओ कि हमने तुमको जिम्मेदारी दिया और दीन की समझ दिया, क्या अमल करके लाया है, क्या जवाब दिया? जरा सोचिए तो सही, अरे जरा सोचिए तो सही कि उमर जिनकी खिलाफत में वो खत लिख देते तो बादशाह अपनी तख्त ताज से उतर जाता, और वो उमर रजी अल्लाह डर रहे हैं और आज अल्लाह ने हमें चुना है, छांटा है। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हम सबको कबूल किया, काम में लगाया है, हमारी जान, हमारी माल को और हमारी वक्त को, हमारी सलाहियत को अल्लाह ताला कबूल किया है और लगवा रहा है। और फिर भी हम इस काम से, तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह वापस अपने कबीले गए, ईमान लाया, वापस अपने कबीले गए और मेहनत किया। और मुसलसल मेहनत के बाद 80 घराना को ईमान में दाखिल कराया और लाया और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 80 घराना है, आप इसे कलमा पढ़ा दीजिए, ये हमारा पूंजी है, हमारा मेहनत है। उसमें से एक नौजवान निकला है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, हमारी मस्जिद बिरान है। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ऐसा तड़पते, ऐसा बेचैन हुआ करते कि लोग कहता कि किसी की अगर जवान बेटा मर जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए और जितना आदमी उस बेटे की गम में, परेशानी में तड़पता है, उससे कहीं ज्यादा ये उम्मत के गम में तड़पते थे। और आज हमारा मस्जिद वीरान है। आज हम कहते हैं भाई हम अकेले हैं, हम क्या करें, हमारा मस्जिद का गश्त नहीं हो रहा है। मेरे बुजुर्गों, तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ी अल्लाह अकेले थे। हम कहते हैं कि हमारा साथी नहीं है, हम तालीम कैसे करें, हमारा अकेला, अल्लाह हमें अकेला कबूल किया है। ये तो ना कदरी है। अल्लाह की चुनी हुई चीजों पे अल्लाह ने जो कबूल किया है उस पे ना कदरी है। अल्लाह कबूल किया, हमें कबूल किया है और हम सोचते पूरा मोहल्ला लग जाए। अल्लाह तो आपको कबूल किया है।
एक को कबूल किया है, वो एक तो यहाँ तड़पे, वो एक तो किताब लेकर के बैठ जाए मस्जिद के अंदर में, वो एक तो किताब की तालीम तो करे। अगर सीने के अंदर गम है, परेशानी है, और अगर उसके अंदर तरफ है, उस तरफ को अल्लाह ताला उस मस्जिद में अकेले नहीं छोड़ेगा, उस तरफ को उठा करके आलम पे अल्लाह डालेगा। हम क्यों नहीं करते? हम अकेले क्यों नहीं करते? हम कहते अकेले इसलिए मुलाकात नहीं करते। हम अकेले क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला चुना है आपको, अल्लाह चुना है आपको, अल्लाह इस काम के लिए चुना आपको, आपको करना है, अकेले करना है। आप निकलिए तो सही, अब चलिए तो सही, अब जाइए लोगों के पास, हम लोगों को खुशामद तो करें, हम लोगों को बुलाए तो। आप जरा देख ले, मुर्गी का अंडा जो होता है ना, मुर्गी का अंडा 22 दिन मुर्गी उसके ऊपर कुर्बानी देता है, अपनी खाना अपनी पीना सब कुछ कुर्बान करता है। वक्त पे न खाना मिलता, न दाना मिलता, न पानी मिलता, और 22 दिन उस अंडे पे रहने के बाद अल्लाह ताला मुर्गी को पूरे जमात दे देते हैं। क्या देते हैं? अरे बोलिए ना, मुर्गी के साथ और कोई मुर्गी बैठता? अकेले मुर्गी जम रहा है, पूरी मुर्गी का अंडा उससे अल्लाह ताला पूरी जमात देते हैं। और अल्लाह ताला उस मुर्गी के अंदर जो सीना है, सीने को, जिगर को शेर जैसा बना देते। जो कल तक मुर्गी एक बिल्ली से भी डरती थी, आज उसकी बच्चा को कोई अगर आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई भी आ जाए, पहलवान आ जाए, उसके सर फोड़ने को तैयार रहती, लड़ जाती है। तो कौन दिया? शेर जैसा जिगर अल्लाह ने दिया उस मुर्गी को कि 22 दिन कुर्बानी दिया तो अल्लाह ने उसको शेर जैसा जिगर, उसकी बच्चा को जाके आप टच करके दिखा दे, तो पहलवान से पहलवान हो, उससे भी लड़ जाएगी और उसको भी सर फोड़ने को तैयार है। क्यों? हम अकेला तो करें, हम तो जमे। हम जब जमेंगे अपने मस्जिद के अंदर में, हम जमेंगे अपने मुकामी काम के अंदर में, अल्लाह हमें जमात देगा और सीना जो देगा, जिगर, वो शेर जैसा जिगर देगा कि आप जाकर के अच्छे अच्छे को दावत देंगे और अल्लाह आपकी बोल पे, अल्लाह आपकी बोल पे वो अल्लाह ताला अच्छे अच्छे को हिदायत देंगे। हम करें तो सही, हम तालीम करते नहीं, हम मुलाकात करते नहीं, 2.5 घंटा लगाते नहीं, हम अपनी मस्जिद की फिक्र नहीं करते। अरे 5 साथी 10 साथी हैं, मस्जिद का फिक्र कर रहे हैं कि ये मस्जिद कैसे आबाद हो जाए। अगर 2-4 साथी हैं, हम कम से कम इसकी फिक्र तो करें कि ये हमारा, अकेले हैं तो फिक्र तो करें, गम तो हो हमारे दिलों के अंदर में, हम तो जाए, ये फिक्र अल्लाह ताला आलम पे डालेगा। और अपनी घर को, सबसे बड़ी अफसोस की बात है, सबसे बड़ी अफसोस की बात है, अल्लाह ने हमें चुना, छांटा, कबूल किया, आज हम अपने घर को वीरान कर दिया। जरा सोचिए सच्ची दिल के ऊपर हाथ रख करके कि अपने घर के अंदर में हमें 5 अमल के साथ तालीम को करना था कि 5 अमल के साथ तालीम करते हमारा मस्तूरात, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी, इसके कुरान दुरुस्त है या नहीं है उसको तो पता चलता, लेकिन हम तो करते ही नहीं है। हम 5 अमल के साथ करते तो कुरान का हल्का लगता, हमको पता चलता कि हमारी माँ की कितनी कुरान दुरुस्त है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते, हम करते ही नहीं, फिक्र नहीं लेते। कौन करेगा मेरे बुजुर्गों, कौन करेगा? ये हम ही आपको करना है। हम किताब की तालीम करेंगे, 6 नंबर की मुज़ाकरा करेंगे घरों के अंदर में, और रोजाना मशवरा करेंगे, और रोजाना हम तस्कील करेंगे और मशवरा करेंगे। हमारे घर के अंदर में हर एक फर्द के अंदर दीन दाखिल होगा, दीनदार बनेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब एक इरादा करके जाए, कोई करे या ना करे, कोई साथ दे या ना दे, कोई हमारा मोइन मददगार बने या ना बने, हम अकेले तालीम करेंगे और जो हमारा साथी है उसको जोड़ने की फिक्र करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी काम करेंगे कि कोई हमारे साथ मुलाकात में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम बेगरज हो करके, बेतलब हो करके अल्लाह के बंदे तक पहुंचेंगे और उनको दावत देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद में जो साथी हमारा है उस साथी को सर जोड़ करके और हम मशवरा करेंगे। हफ्ते की 2 गश्त है, एक अपनी मस्जिद की गश्त और एक पड़ोस की गश्त। ये 2 गश्त अपनी जात से तो हो जाए, अपनी जात से तो हो। कभी कभी हम अपने मस्जिद में अकेले
اور اکیلے نکلتے ہیں اور کوئی ساتھی مل گیا اس کو پکڑ کے رہبر بنا دیتے، آگے کوئی ملا تو اس کو ذمہ دار بنا دیتے اور آگے گشت کر کے واپس آتے۔ ہم تو کریں اپنی گھر کی تعلیم جو ہے وہ تعلیم 5 عمل کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں کریں گے، ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے زندگی کے اندر وہ انقلاب نہیں آنے والا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ محنت اور قربانی کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا